Hooke's law says that stress divided by strain is called as modulus of elasticity. Okay, it is a constant and this constant is called modulus of elasticity. इसकी different types हैं. हमने शायद लास्ट में बात की थी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. नाउ आज बात करेंगे हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की. bulk modulus of elasticity. Bulk modulus of elasticity जनरली B से रिप्रेजेंट किया जाता है. इन सम ऑफ द बुक्स इसको K से रिप्रेजेंट किया होगा. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी स्ट्रेस स्ट्रेन रेशियो है. इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. इट इज द रेशियो ऑफ normal stress to volumetric strain. So this bulk modulus of elasticity is F by A तो है ही है, normal stress force per unit area. Suppose कोई वही एग्जांपल लेता हूँ. कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम है V एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि हम इसको कंप्रेस करके वॉल्यूम डिक्रीज कर दें. इट बिकम्स V डैश. सो व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? याद करो मैंने क्या बताया था. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज V डैश माइनस V बाय V, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम. सो वी राइट माइनस डेल्टा V बाय V हियर. ठीक है, and we have discussed why this negative sign, because we have compressed here. So this B is equal to F into V divided by A delta V with negative sign. This is bulk modulus of elasticity's definition. Minus FV divided by A into delta V. और ध्यान से देखिए ये V है हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम. मान लो ये स्फीयर ही है जैसे दिख रहा है आपको. दिस विल बी 4/3 पाई आर क्यूब. डेल्टा वी क्या है? उसके वॉल्यूम में जो चेंज आई दैट इज डेल्टा वी, फाइनल वॉल्यूम माइनस द इनिशियल वॉल्यूम. और ए क्या है? उसका सरफेस एरिया. उस सरफेस, किसका सरफेस एरिया? स्फीयर का, 4/r². ठीक है, तो स्फीयर के लिए आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. जी हाँ, पॉजिटिव हो सकता है अगर हम इसको फोर्स इधर लगाए अपोजिट डायरेक्शन में ताकि हम इसको एक्सपैंड करें. जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे यू विल हैव डेल्टा V बाय V. ठीक है, माइनस नहीं आएगा बिकॉज बेसिकली डेल्टा V का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करता है कि हमने फोर्स लगा के कंप्रेस किया है या एक्सपैंड किया है. इफ वी कंप्रेस डेल्टा V विल बी नेगेटिव. इफ वी एक्सपैंड डेल्टा V विल बी पॉजिटिव. It can be positive or negative. And again, this bulk modulus of elasticity is one of the elastic constants. बेटा जो bulk modulus of elasticity है, this is such a elastic constant which is defined for all three states of matter. मैंने previous class में आपको ये बताया था कि Young's modulus of elasticity is defined only for solids. Bulk modulus of elasticity is defined for solids, liquids and gases, right? And bulk modulus of elasticity का जो reciprocal है that is called compressibility. So if somebody asks what is compressibility, compressibility is represented by K and it is 1/B. So when it is 1/B, अगर इसी के हिसाब से देखें यहाँ तो compressibility में तो obviously compress ही कर रहे हैं. ठीक है, तो it will be minus A into V divided by A into delta V, sorry, minus A into delta V divided by F into V. Again negative sign यहाँ रहने दीजिए which is indicating the compression produced. For a perfectly rigid body,
delta V is 0. We cannot compress a rigid body. And अगर किसी perfectly rigid body के लिए delta V 0 है, देखिए जब delta V 0 होगा तो compressibility भी 0 होगी और modulus of elasticity will be, yeah, bulk modulus of elasticity will be infinite. For a perfectly rigid body, delta V equals to 0, therefore K equals to 0 and B equals to infinite. What is SI unit of bulk modulus of elasticity? देखिए कोई भी modulus of elasticity है तो stress by strain, normal stress by volumetric strain या normal stress by longitudinal strain, और strain तो dimensionless है, unitless है, तो जो stress के units and dimensions होंगे वही modulus of elasticity के, so that is Newton per meter square, because strain is unitless. ठीक है, तो चाहे y है चाहे b, या आगे एक और पढ़ेंगे, जो modulus of elasticity है उसके यूनिट होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसके डायमेंशंस होंगे क्या, m1 l-1 t-2, करके देख लेना. फोर्स पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस, सो फोर्स इज m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाय l2. प्रेशर का भी यही होता है. थर्ड जो इलास्टिक कांस्टेंट है, इट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. रिजिडिटी या shear modulus of elasticity बोला जाता है बेटा. It is also called as the shear modulus of elasticity. eta से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अगेन ये स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो ही होगी. कौन सा स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और कौन सा स्ट्रेन, shear strain. It is the ratio of tangential stress to shear strain. Suppose this is area A here. We apply force, tangential force apply करेंगे. This force per unit area divided by shear strain क्या है, यहां से देखिए ये वाली साइड इधर, थीटा. So this is tan theta. F by A tan theta. और ये भी सिर्फ सॉलिड्स के लिए डिफाइंड है. यू कैन नॉट पुश ए लिक्विड. किसी कंटेनर में लिक्विड पड़ा और आप ऊपर से ऐसे फोर्स लगाओ अलोंग द एरिया, टेंजेंशियल है ना, अलोंग द एरिया फोर्स लगाओ और वो लिक्विड ऐसे ऐसे की बजाय ऐसे हो जाए, वो नहीं होता है. लिक्विड का तो कोई प्रॉपर शेप होता ही नहीं है, राइट. तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है दैट इज आल्सो, या shear modulus या modulus ऑफ रिजिडिटी जो है डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स. सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही डिफाइंड है ये भी. आज हम एक इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ेंगे बेटा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए वायर. सिर्फ हुक्स लॉ तक नहीं, जनरल ग्राफ पढ़ेंगे टिल द वायर ब्रेक्स.
It is called stress strain curve. For a wire. ये कोई रिजिड सपोर्ट के साथ, सपोज ये एक वायर है जो हमने अटैच की है, एक वायर हम अटैच कर देते हैं और हम क्या करेंगे, इस वायर के एक एंड पे स्ट्रेस लगाते जाएंगे। स्ट्रेस कैसे लगाएंगे? हम बेसिकली फोर्स लगाएंगे, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया बिकम्स स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं लगाते, जैसे प्रेशर नहीं लगाते, फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। टॉर्क नहीं लगाते, फोर्स लगाते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बिकम्स टॉर्क, राइट। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ मान लो कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वी कैन ऐड सम वेट्स टू इट, जैसे कोई वेट अटैच कर दिया, 1 2 3 ऐसे वेट रखते जा रहे हैं, ठीक है। वेट रखते जा रहे हैं तो मतलब स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, वेट पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। और कॉरस्पॉन्डिंगली क्या हो रहा है, दिस वायर इज बीइंग, देख इसका एक्सपेंशन हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, ठीक। एंड सपोज करो कि वो हम ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं, नॉर्मली हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे वो, बट लेट अस एज्यूम कि ये वायर थोड़ी थिन है एंड हमने वेट थोड़ा ज्यादा रखा है, सो दैट वी कैन सी कितना एक्सपेंशन हुआ। और टू बी वेरी स्पेसिफिक वी कैन टेक अ स्प्रिंग आल्सो, इसमें थोड़ा ज्यादा विजिबल होगा। तो क्या करना है, हम एक ग्राफ बनाते हैं, कैसे? फोर्स, मैंने आपको बोला हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। F is directly proportional to the extension produced, one and the same thing, because that force corresponds to stress and extension corresponds to strain. फोर्स बढ़ाएंगे, ठीक है, और देखते जाएंगे कि एक्सटेंशन किस रेशियो से बढ़ रही है। जनरली अगर हम बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो मतलब अभी हमने कोई स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया, no stress and therefore no strain, so we are here। जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वही, क्योंकि यहां हम लेने वाले हैं स्ट्रेन और इधर हम ले लेंगे स्ट्रेस, ठीक है। नो स्ट्रेस नो स्ट्रेन, इसका मतलब ये नहीं है कि वायर की लेंथ नहीं है, वायर की ओरिजिनल लेंथ है, उसमें एक्सटेंशन नहीं हुआ अभी, ठीक। फिर हमने 1 ग्राम रखा या 10 ग्राम रखा, तो हमने देखा 10 ग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन हुआ। 10 और रखा, देखा 2 सेंटीमीटर हो गया। 10 और रखा, तो इनिशियली तो जब तक इस वायर की प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं आती, प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब जहां स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तब तक ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। मतलब रेशियो से 10 ग्राम 1 सेंटीमीटर, 20 ग्राम 2 सेंटीमीटर, 30 ग्राम 3 सेंटीमीटर, 50 ग्राम 5 सेंटीमीटर, ठीक। मान लीजिए दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू 50 ग्राम, सॉरी 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 50 ग्राम, सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। उसके बाद आपकी वायर का पूरा पिक्चर ना अपने दिमाग में रखिए। अगर वायर नहीं इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे, यू एज्यूम इट इज ए सिंपल रबर, ठीक है। वो इजीली आप आइडिया लगा सकते हैं क्या हो रहा होगा। वेट लगाया, एक्सटेंशन हो गया, हटाया, वापस आ गया, फिर लगाया, ज्यादा एक्सटेंशन हुआ, फिर हटाया, वापस। एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के बाद जो ये प्रोपोर्शनैलिटी है वो थोड़ा डिफर करने लगती है। अब मतलब अब उतना ही स्ट्रेस लगाएंगे जितना पहले लगा रहे थे। जैसे पहले अगर हम 10-10 ग्राम से बढ़ा रहे थे, तो हम देख रहे थे कि स्ट्रेन 1-1 ग्राम से बढ़ रहा है। अभी
ए पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर हमने स्ट्रेस 10 ग्राम बढ़ाया, देखा कि अब एक नहीं 1.2 सेंटीमीटर बढ़ गया, बिकॉज विद इंक्रीज इन स्ट्रेंथ क्या हो गया, इस वायर की थिकनेस थोड़ी कम हो गई, ठीक है। एंड यू कैन इमेजिन कि वायर की थिकनेस कम हो गई मतलब दैट वायर हैज नाउ बिकम लिटिल वीक, क्योंकि ये पॉइंट इसके बिल्कुल पास बनाऊंगा बी, दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, धीरे धीरे तो ये वायर बड़ी ही वीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये बी पॉइंट आ गया। उसके बाद देखिए, मान लो ये बी पॉइंट तब आया जब हमने 60 ग्राम वेट रख दिया, और ये 60 ग्राम उसकी, जैसे ही इसको हटाएंगे यील्ड है, मतलब इसके आगे नहीं हम जा सकते। तो जब हम इसको हटाएंगे, द बॉडी विल कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, the wire will come back to the original state, means there will be no strain when we remove the stress. So this is proportional limit and this is called as elastic limit, या इसको yield point बोलते हैं, कि इससे ज्यादा नहीं, not more than this, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मान लो हम स्ट्रेस थोड़ी और बढ़ा दें, बी पॉइंट के बाद थोड़ी सी और बढ़ा के से हम सी तक ले जाए, मैं थोड़ा दूर करके दिखा देता हूँ, सी तक ले जाते हैं स्ट्रेस को, दैट हैज बिकम बिट कर्व्ड, क्योंकि अब स्ट्रेन थोड़ी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है पहले से। अगर हम और बढ़ाएंगे ना, से अप टू पॉइंट सी, और इसको हटा दें, सिंस हमने लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दी या लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दी, अब सपोज लिमिट 60 थी और हमने क्या किया 65 ग्राम रख दिया, तो जब हम इस वायर को फिर से ये करेंगे, फ्री करेंगे फ्रॉम दीज वेट्स, वेट हटा देंगे, तो क्या होना चाहिए, जब तक इलास्टिक लिमिट थी तब तक तो हम ये बोल रहे थे कि ये वायर तो वापस 0 0 पे आ गई, 0 0 मतलब स्ट्रेस 0 किया, स्ट्रेन 0 हो गया, लेकिन वो तो लिमिट तक ही होता है, तो लिमिट से ज्यादा जब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया था, तो अब इस पॉइंट सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, दैट विल प्रोड्यूस ए परमानेंट स्ट्रेन इन द बॉडी, ये दिस ओ डैश इज कॉल्ड एज परमानेंट स्ट्रेन, या इसको परमानेंट सेट बोलते हैं। परमानेंट सेट क्यों बोला, देखो सपोज इस वायर की ओरिजिनल लेंथ वाज 10 सेंटीमीटर, राइट, हमने 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 10 ग्राम तक वेट रख रहे, 50 ग्राम तक भी रखा, और जैसे ही 50 ग्राम हटाते हैं तो वापस 10 हो जाती है, लेकिन 60 ग्राम तक हमने इसको बोला है, सॉरी 60 ग्राम तक हमने इसको रखा है, इलास्टिक लिमिट 60 ग्राम तक वेट रखा, हटाया, वापस 10 हो गया, तो वो जो 10 हो गया ना, उसी वही 0 0 है ओरिजिनल लेंथ उसकी। 65 ग्राम रख के छोड़ दिया, नाउ द लेंथ हैज बिकम इंस्टेड ऑफ 10 सपोज इट हैज बिकम 10.5, अब उसको दोबारा कम नहीं कर सकते हम, वो जो ओरिजिनल लेंथ 10 थी, नाउ दैट ओरिजिनल हैज बिकम 10.5, मतलब अगर हम अब एक्सपेरिमेंट दोबारा से स्टार्ट करें, नाउ वील हैव टू टेक suppose we have to take the same wire, now the length of that same wire will be 10.5 instead of 10, तो वो 0.5 जो है वो ये है कि अभी हमने स्ट्रेस नहीं लगाई तो फिर भी उसमें कितना स्ट्रेन है, 0.5 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड परमानेंट सेट। में सारे नॉमेनक्लेचर आपको बताऊंगा। उसके बाद सोचो हमने 65 ग्राम रखा है, हम अब वेट नहीं बढ़ाएंगे, हमने लिमिट से ज्यादा रखा है ना, अब हम वेट नहीं बढ़ाएंगे, विल कीप द सेम वेट जितना है, मतलब स्ट्रेस नहीं बढ़ाया, तो क्या ये वायर यही रहेगी, अब इसमें सिंस इसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ कम हो गई है, लिमिट से ज्यादा लगाया था ना, इट हैज बिकम बिट थिनर, सो व्हाट विल हैपन, तो जो वेट हमने रखा हुआ है उसी वेट के कारण दिस वायर विल कीप ऑन स्ट्रेचिंग, इट विल कीप ऑन एक्सपैंडिंग, ठीक है। द ग्राफ विल लाइक गो लाइक दिस, मींस हम स्ट्रेस नहीं बढ़ा रहे, या इनफैक्ट आप स्ट्रेस थोड़ा कम भी कर दो, 60 ग्राम 50 ग्राम कर दो, एक बार वो वायर थोड़ी पतली हो गई, उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ कम हो गई, तो जो ऑलरेडी हमने वेट रखा था उसको कम करने पे भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, एंड ये कब तक प्रोड्यूस होगी, टिल एट सम पॉइंट डी द वायर ब्रेक्स, ठीक है। डू यू इमेजिन वायर हमने पहले वेट रखा 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 रखते जा रहे हैं,
हटाया, वापस आ गया, लिमिट से ज्यादा लगाने लगे, फिर हम और नहीं बढ़ा रहे, तो क्या हो रहा है, जितना वेट है उसी से खींचती जा रही, खींचती जा रही, खींचती जा रही है। दिस रीजन, in this region the wire will behave, this is metallic wire, this will behave like a fluid, पूरा ऐसे पिघल जैसे जाएगी वायर। एंड कब तक ये जाती जाएगी, एक्सपैंड होती जाएगी, या ये क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेच होती जाएगी, जब तक ये वायर टूट नहीं जाती। सो इस ग्राफ में कौन कौन सी चीजें हमने अंडरस्टैंड करनी है वो समझना। आप पहली चीज जो पॉइंट ए है यहाँ इन दिस ग्राफ, दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल लिमिट, दिस इज कॉल्ड एज, ये इधर स्ट्रेन है, it is called as proportional limit. Corresponding to this proportional limit, the graph between stress and strain is linear, is a straight line. Hooke's law valid है, not only up to point A, point B जिसे हम elastic limit या yield point बोलेंगे, for this also, for this point B also Hooke's law is valid. सिर्फ ये है कि ये जो पॉइंट होगा ये इसके बिल्कुल पास ही होगा, ठीक है। पॉइंट डी तो हमने बीच में ऐसा पॉइंट बना लिया जो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा है। डी पॉइंट क्या है यहाँ, डी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट, द वायर हैज नाउ ब्रोकन। बट ओ डैश क्या है, ओ डैश इज परमानेंट सेट, permanent strain, it is actually the strain corresponding to the stress at point C. C point पे जो stress है उसके corresponding जो strain है, that is now permanently established in the wire, so it is called as the permanent set. And D is called as the breaking point. Point D is called as the breaking point. फिर ये जो पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन इस ग्राफ का, इलास्टिक रीजन, ठीक है, अप टू द इलास्टिक लिमिट जो पोर्शन है उसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन। एंड आफ्टर दिस इलास्टिक रीजन टिल द ब्रेकिंग पॉइंट, दिस रीजन इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक रीजन। ठीक है, एंड ये नाम ऐसा क्यों है वो आपको सामने दिख रहा है, यहाँ इलास्टिसिटी है, यहाँ प्लास्टिसिटी है, बिकॉज यहाँ परमानेंट डिफॉर्मेशन के बाद वाली सिचुएशन है। ठीक है, ये वाली स्ट्रेस हटाने के बाद वायर अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, बट इससे पहले पहले अगर हम कहीं भी हटा दें, स्ट्रेस को जीरो करें, स्ट्रेन जीरो हो जाता है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्राफ, व्हाई वी स्टडी अबाउट दिस ग्राफ इज, हम किसी पर्टिकुलर यूज के लिए कौन सा मटेरियल चूज करेंगे वो हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ, on the basis of elastic strength of material. This has wider applications not only in engineering but in medical science also. कहीं कोई artificial limbs बनाने हैं, ठीक है, कोई artificial finger बनानी है, या किसी की leg का lower part जो है that is to be replaced and उसकी जगह कोई artificial लगाना है, ठीक है, तो उसमें elasticity plays important role कि कौन सा material लगाना है, what is the weight of the person, उसका डाया कितना है, उसका जो नी का लोअर पार्ट है कितना उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उसी के बेसिस पे। ये नहीं होना कि वो दोबारा से वो प्लास्टिक कोई ऐसा लगाया या कोई मटेरियल ऐसा चूज किया कि जैसे ही बंदा थोड़ा सा चला तो वो टूट गया दोबारा, तो दैट शुड नॉट हैपन। सो वो उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ है,
वो इलास्टिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कौन सा मटेरियल चूज करना है। इंजीनियरिंग में तो है ही, हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, मल्टीपल स्टोरीज, तो वहाँ बड़े स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का काम होता है कि यहाँ जो मिट्टी है, यहाँ का जो सरफेस है, उस सरफेस की इलास्टिक स्ट्रेंथ कितनी है। फिर उसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि हम कितने फ्लोर्स उठा सकते हैं। ऐसा नहीं हो ना कि हम मान लो 5 ही उठा सकते हैं और हम 6 उठा दे तो नीचे वाला तो उधर जाएगा नीचे, सो 5 ही रहेंगे ऊपर। ठीक है, दैट इज द यूज इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ठीक, लेकिन हम कुछ मटेरियल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ। देयर इज ए कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स व्हिच आर कॉल्ड एज डक्टाइल मटेरियल्स। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है उनकी। सो व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? वायर ड्रॉ कर सकते हैं, वी हैव ए रॉड एंड वी कैन ड्रॉ वायर फ्रॉम दिस रॉड। सो टेक्निकली जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं ना, दे हैव ए वेरी लार्ज प्लास्टिक रीजन, मतलब द ब्रेकिंग पॉइंट विल कम आफ्टर लॉन्ग टाइम। So we have a rod of copper, we can draw a wire from the copper. Copper and aluminium are called as ductile materials. ठीक है, इस ग्राफ के बेसिस पे अगर बताना है तो डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं which have large plastic region. These are the materials having large plastic region, for example copper, aluminium, etc. So you can say that rods of these wires, these materials can be drawn into wires. There is a category of materials जिनको बोलते हैं बेटा brittle materials. Brittle कौन से हुए? हाँ ठीक है, वो टूट जाते हैं। ग्राफ के बेसिस पे कौन से हुए? ब्रिटल टूट जाता है जिसका इलास्टिक प्लास्टिक रीजन बहुत ही कम हो। ठीक है, एक लिमिट तक तो कुछ नहीं हो रहा, लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाओ सीधा टूट ही जाएगा, ये प्लास्टिक वाला रीजन आएगा ही नहीं, सीधा ग्लास, a piece of glass, nothing will happen, but once it happens it will never regain, it will be like broken. So brittle materials have very small plastic region. ठीक है, elasticity and plasticity. So glass is a brittle और dry clay balls, मिट्टी का बॉल होता है ड्राई वाला, सूखे हुआ, तो वो क्या होगा, एक लिमिट तक ऐसे प्रेस करे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, बट वंस इट हैपेंस इट इज ब्रोकन, टूट ही गया पूरा. सो दीज आर द ब्रिटल मटेरियल्स. फॉर ब्रिटल मटेरियल्स the plastic region is very small, and for ductile materials the plastic region is very large. Then there is a expression which is called as elastic potential energy. किसी भी वायर को स्ट्रेच या कंप्रेस करने में जो एनर्जी लगेगी, जो वर्क करना पड़ेगा, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इट इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग अ वायर. हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसी स्प्रिंग के लिए हमने कैलकुलेट की थी वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में. इट वाज 1/2 kx². ठीक है, यहाँ देखते हैं. सपोज एक वायर है, जिसकी ओरिजिनल लेंथ L कैपिटल ले लेता हूं, और स्ट्रेच करके हमने जो लेंथ बना ली दैट इज L + L. तो कितना स्ट्रेचिंग किया? स्मॉल L. एक वायर की ओरिजिनल लेंथ L है, फोर्स लगा के स्ट्रेच किया और लेंथ बन गई L + L. तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई. ऐसा करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा? दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी.
सपोज इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ओरिजिनली जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए, तो स्ट्रेच कितना है यहाँ एफ बाई ए, और स्ट्रेन कितना है स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, क्योंकि यहाँ कितना एक्सटेंशन हुआ है इतना, ये पहले ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ वी हैव टेकन एज एल और फाइनल लेंथ एल प्लस एल, तो एक्सटेंशन कितना हुआ एल प्लस एल माइनस एल, एक्सटेंशन हुआ एल का। फोर्स हमने अप्लाई की है एफ, तो स्ट्रेस कितना है एफ बाई ए, और स्ट्रेन कितना है स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। ठीक है, ये तो डेफिनेशन पढ़ी है पहले। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस वायर, y इक्वल्स टू एफ बाई ए डिवाइडेड बाई एल बाई एल। ठीक है, यंग्स मॉडुलस की क्या डेफिनेशन है, इट इज नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, यहीं पे खत्म की थी हमने प्रीवियस क्लास। अब यहाँ मैंने थोड़े से टर्म्स चेंज कर दिए, डेल्टा वेल्टा नहीं लाया। सो वी राइट दैट y इज इक्वल टू f इंटू एल बाय a इंटू एल। ठीक है, पहला f इंटू एल डिवाइडेड बाय a इंटू एल, तो f कितना हो गया y a l डिवाइडेड बाय कैपिटल L। इसको लिख लीजिए पहले, is the small amount of work done when the wire is stretched by a small length dl, then dw will be equal to f into dl. This is the definition of work. अगर हम इस वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं बाय स्मॉल अमाउंट dl, यहाँ बीच में कभी dl भी आया होगा, स्मॉल वर्क विल बी f dl. So what is f actually? We can write dw equals to y-a-l by l into dl. The total work done when the wire is stretched from 0 to L, 0 मतलब ये वाली सिचुएशन, 0 लेंथ है उसकी, 0 लेंथ नहीं 0 एक्सटेंशन, और अभी हमने खींच के कर दिया इतना बड़ा इस वायर को, तो एक्सटेंशन कितनी हो गई स्मॉल एल, एल प्लस एल नहीं, अभी लेंथ हो गई एल प्लस एल, एक्सटेंशन कितनी हो गई एल प्लस एल माइनस एल। ठीक है, तो कितना वर्क टोटल करना पड़ा, इसी को इंटीग्रेट कर दो, y a l, l ही है ना वेरिएबल, 0 टू l, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन करके, इस तरफ तो वर्क आ जाएगा y a l by l इंटू एल स्क्वायर बाय 2, 0 टू l लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0 टू l तो वो l ही आएगा, l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो ये वर्क क्या बन गया बेटा, therefore w equals to 1 by 2 y a l square by l। ठीक है, इसी वर्क को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन आपको यहां दिख रहा है ना, इसको हम थोड़ा बेटर फॉर्म में लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन में y है
Young's modulus of elasticity. A is original area of cross section, L is the extension, and capital L is the original length. This expression can be written as, ध्यान से देखियो, it is YA into L square by capital L square. कैपिटल एल से मल्टीप्लाई किया, कैपिटल एल से डिवाइड कर दिया, ठीक है. मैंने आपको क्या बोला, व्हाट इज ए, ओरिजिनल एरिया, ये वाला एरिया, और ये इसकी लेंथ है ओरिजिनली. तो ये ए इंटू एल वॉल्यूम नहीं हुआ, एरिया इंटू लेंथ. सो वी हैव डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/2 y इंटू वॉल्यूम इंटू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, दैट इज स्मॉल एल बाय कैपिटल एल होल स्क्वायर. और क्या था ये स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, स्टार्टिंग में देखो स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया. वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हुआ फिर, अगर मैं सीधा बोलूं, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू W बाय वॉल्यूम. So what will be that? 1/2 y into strain square. This is the expression, final expression. Work done or potential energy per unit volume is 1/2 y into, what is y? Y is Young's modulus of elasticity. बट हम यही नहीं रुकने वाले, यहां देखो U हमारे पास आ गया 1/2 y इंटू स्क्वायर ऑफ स्ट्रेन. ठीक है बेटा, देखना इसको. y होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. So if I put it here, U will be equal to 1/2 stress by strain into strain square. This and this will be out. So what is U equal to? 1/2 stress into strain. More better formula. Potential energy per unit volume is 1/2 stress into strain, or in terms of y it is y into strain square. तो इसी एक्सप्रेशन को, ये दो है ना हमारे पास, दो हो गए. इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस एंड y. कैसे, यहीं से देखो, स्ट्रेस कितना हुआ, स्ट्रेस हुआ किसी को, y इंटू स्ट्रेन हुआ. स्ट्रेस हुआ कि स्ट्रेन हुआ, ये भी सोचना. स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन. So strain happens due to stress. So y चाहिए ना मुझे, स्ट्रेन, सॉरी, यहां से स्ट्रेन देखो कितना आएगा. स्ट्रेन विल बी स्ट्रेस बाय y. तो u क्या बना फिर, 1/2 y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर है, इट विल बी स्ट्रेस स्क्वायर divided by y square, एक cancel. So u will be equal to 1/2 y square of stress. So 1/2 y into strain square, 1/2 stress into strain, 1/2 y stress square. ठीक है, जो भी कन्वीनियंट लगेगा, मतलब जो भी पैरामीटर्स गिवन है, आई एम शेयरिंग एन असाइनमेंट बेस्ड ऑन दिस. जो भी पैरामीटर्स गिवन है उसकी टर्म्स में लिख सकते हैं. ठीक है, टुमारो विल डिस्कस दैट असाइनमेंट. और आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करें इसके, आज बुक लेके आओ कल साथ में.